Yeah, function like is the actual entire function what we write normal C++ में. Similarly, हम macros के लिए भी functions बनाते हैं. Next are the compilers. Compilers, everyone know what is a compiler because we have used that in SPA or C++ में. Compilers का काम होता है to transform the source code written in a computer language into another language, that is binary or say machine language. So compilers basically convert this high level language into a low level language or say machine language. Also, it does the work of finding an error, गिविंग सम वार्निंग्स, अगर प्रोग्राम में कुछ करेक्ट नहीं है, कुछ गलत जा रहा है, तो उनका काम होता है एरर्स डिस्प्ले करके यूजर को इन्फॉर्म करना. If there are no errors, even if you compile that program, it converts it into .exe file, that is the executable code file, which technically we say is converted into the machine language. So ये रहा source program, compile होता है, कुछ error होगा तो error message आएगा, target नहीं तो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, असेंबलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लिंकर या लोडर इसमें जो भी नेसेसरी लाइब्रेरी फाइल्स या कुछ अटैच करनी है तो लिंकर अटैच करेगा, लोडर उसको मेमोरी में लोड करेगा एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्जीक्यूटेबल मशीन कोड, यानी वो मेमोरी से सीधा फिर एग्जीक्यूशन में चला जाएगा. तो सिर्फ कंपाइलर का डायग्राम हम देखें तो इट इज लाइक सोर्स प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम, कंपाइलर. सोर्स प्रोग्राम, कंपाइलर कन्वर्ट्स इनटू टारगेट प्रोग्राम. So when we talk assembler ये करता है, compiler ये करता है, तो सारे चीज वही करते हैं. It is just that what places they are situated between source and target machine code. So compiler will convert to assembly, assembly will further convert to machine code. Linker ये जो हम hash include stdio.h वगैरह लाइब्रेरी फाइल्स देते हैं, mat.h वगैरह string.h, वो सारी फाइल्स को लिंक करने का काम लिंकर करता है. लोडर ये सारे फाइल्स along with the programs मेमोरी में लोड करके रखता है for execution. See, what are the different applications of compiler? Machine code generation, interpretation, text formatting, conversions, silicon compilations. यहाँ ये सारे compilers के applications है कि कौन सा field में compilers use होते हैं. Yeah. After applications we come to phases of compiler. अब एक जो compiler है उसको बहुत parts में divide किया है for better understanding or say for better developing the compiler. So that compiler is having following phases like lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generation, target code generation, code optimization, symbol table management, error handling and recovery. ये diagrams बहुत important है. SPCC में the flow charts, the diagrams are very important क्योंकि पूरे subject में यही मिलेगा, तो based on that only you will have to study because उसी पे questions आएंगे. If you remember that flow chart properly, you will remember that answers easily. So ये रहा, this is अपना source code जो भी लिखते हैं हम hash define, void main and all, ये हम compile करते हैं. Now this is a compiler front end की क्या क्या होता है. So when you compile .exe फाइल जो बनती है उसमें लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म होता है जिसमें पूरा कोड जो है वो टोकन्स में कन्वर्ट होता है. टोकन्स मतलब एक एक कीवर्ड्स में कन्वर्ट होता है. देन वी हैव सिंटैक्स एनालिसिस. सिंटैक्स मतलब वो प्रोग्राम का सिंटैक्स करेक्ट है क्या, सेमीकोलन्स प्रॉपर है, मेन फंक्शंस करेक्टली डिफाइन किए हैं, मेन फंक्शंस के यहाँ पे आसपास ब्रैकेट्स है, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस है कि नहीं. एंड देन वी हैव सिमेंटिक एनालिसिस. सिमेंटिक करेक्टनेस इज यहाँ पे you're checking the logic of the program, the execution steps of the program, कहीं पे बीच में कुछ missing है, errors है कि नहीं. If there are errors, it will generate the errors. की errors अगर छोटा मोटा errors है तो कैसे handle करना है, नहीं है तो कैसे display करना है, system related errors है तो how will you handle that. If not, then it will go for symbol table management to check whether everything is correct or not. ये सब चेकिंग करने के लिए सिंबल टेबल मैनेजमेंट होता है कि टोकन्स कन्वर्ट किया, सिंटैक्स चेक किया, ये सिंबल का मतलब यही है, प्रिंटफ का मतलब प्रिंट करना है, सेमीकोलन का मतलब एंड ऑफ स्टेटमेंट्स ही है. तो ये सब जो चेकिंग्स होता है वो इस टेबल के बेसिस पे होता है क्योंकि ये टेबल में सब कुछ मेंशन किया हुआ होता है. देन यू जनरेट एन इंटरमीडिएट कोड. तो इंटरमीडिएट कोड इज जो असेंबलर्स बीच में बनाते हैं असेंबली लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होता है वो कोड ऑप्टिमाइजर होता है. कोड ऑप्टिमाइजर मतलब इट चेक्स अगेन फॉर एरर्स एंड एवरीथिंग. इट विल मेक श्योर कि एफिशिएंट है कि नहीं, कोड ज्यादा टाइम तो नहीं लेगा एंड ऑल. एंड देन इट कन्वर्ट्स टू मशीन लैंग्वेज, दैट इज द टारगेट कोड जो चाहिए रहता है हमें एग्जीक्यूशन के लिए. सो टारगेट कोड का कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है कि कितने पार्ट्स में उसको रन करना चाहिए, मल्टीपल प्रोसेसर्स पे रन करना चाहिए या सिंगल प्रोसेसर पे रन करना चाहिए, सो दैट
the code is efficient, the code is giving quick results, and then finally it is run on a given machine. So ये सब phases होते हैं compilers के. Next topic we start with is interpreter. Interpreter is basically जैसे मैंने बोला source code और target code के बीच में you have an assembler जो हम एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करते हैं. जैसे अभी जावा किया तो जावा के इसमें कन्वर्ट करेंगे, सी प्लस प्लस के इसमें कन्वर्ट करेंगे. असेंबलर है तो वो असेंबली यानी माइक्रो प्रोसेसर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट होता है. तो इंटरप्रेटर का काम होता है बेसिकली या तो सोर्स कोड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना या फिर उसको किसी और इंटरमीडिएट लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करके उसको एग्जीक्यूट करना. So this is the difference between interpreter and compiler, which is very simple. Please go through it by yourself. In case of doubts, let me know that. Next, we study what is operating system. Operating system is nothing but an interface between the hardware and the softwares. यानी जो भी different device hardwares है, वो hardwares को run करने के लिए या properly system के साथ function करे, इसको softwares के साथ बहुत यानी कंपैटिबल होना जरूरी है. जैसे मैंने बोला था डिफरेंट डिवाइसेस है, अपना ये हो गया ग्राफिक कार्ड्स हो गया, अपना ऑडियो वीडियोस हो गया सबका. तो अभी हमने स्पीकर लगाया लेकिन वहां पे मीडिया प्लेयर्स ही नहीं है तो दिखेगा ही नहीं और सुनाई भी नहीं देगा. फॉर डिफरेंट हार्डवेयर यू नीड टू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो takes responsibility for providing different resources के कब किसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, एड्रेस बसेस अवेलेबल करना है, मेमोरी से डेटा लेके जाने के लिए वी हैव डेटा बस, कौन से एड्रेस पे डालना है उसके लिए एड्रेस बस, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कंट्रोल बस वेयर इट मेक्स श्योर दैट इट इज कंट्रोलिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम प्रॉपरली एंड देयर इज नो केओस कि सिस्टम प्रॉब्लम में ना आए जिसकी वजह से वो हैंग हो या वो क्रैश हो. तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है. यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं. Please go through it one by one. I'll explain that in detail in further chapters. Next are the device drivers. जैसे मैंने बोला device drivers is nothing but a collection of software files that helps one or more hardware devices to communicate. जैसा CD-ROMs हुआ, printers हुआ, diskettes हुआ. अभी printers भी जब हम लगाते हैं तो printer is a hardware, but we need to have a software application installed so that printer PC के साथ या laptop के साथ connect हो सके. Only then it can print. So, ऐसे बहुत डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं. बिना वो ड्राइवर्स इंस्टॉल किए आपके कोई भी डिवाइसेस करेक्टली हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं वर्क करेंगे. पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ अ डिवाइस ड्राइवर इज सिंप्लीफाइज प्रोग्रामिंग बाय एक्टिंग एज एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है फिजिकल डिवाइसेस को लॉजिकली कन्वर्ट करता है. लॉजिकली मतलब पीसी में एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है जिसकी वजह से पीसी में से हम इंस्ट्रक्ट करें तो वो प्रिंटर्स पे प्रिंट करेगा या ऑडियोज देगा या सीडीज पे कॉपी हो जाएगा वैसे. सो दैट्स व्हाई वी नीड डिवाइस ड्राइवर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडिटर्स. नाउ एडिटर्स तो हमने बहुत सारे देखे हैं. एडिटर्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर टाइपिंग, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, राइटिंग ऑल न्यू और मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग वंस. इसके लिए टेक्स्ट एडिटर्स चाहिए होते हैं. अभी विंडोज के लिए वी हैव नोटपैड, वर्डपैड एज एन एडिटर्स. यूनिक्स के लिए वी हैव पिको, वीआई एंड एमैक्स एडिटर्स. Mac OS के लिए simple text and text edit. So based on different OS what you use, you have different editors that are supported by this OS. आप कोई भी editors किसी भी OS में नहीं डाल सकते, वो support नहीं करेगा. So you have to make sure that you have used the correct editors which is going with that OS. Features of text editors. फीचर्स तो हमको सबको पता है. हम लिखते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, फाइंड रिप्लेस, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, रीडू, अनडू. So that is all we are done. Multiple file editing, macro procedures. मतलब कुछ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है जो अर्जेंटली लिखना होता है तो हम फटाफट लिख के ट्राई करते हैं. एल्गोरिदम्स उस पे लिख लेते हैं. उसके बाद हम टर्बो सी या पाइथन या कोई भी हम लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो उसके आईडी पे जाके लिखते हैं. We have data transformation like reading some data. जैसे अभी हम गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं तो हम नोटपैड पे, वर्डपैड पे इसको कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, फिर इसको प्रॉपर एडिट करते करते इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. सिंटैक्स हाइलाइटिंग यानी फिल्टरिंग. फिल्टरिंग इन द सेंस उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाना, उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना. सिंटैक्स हाइलाइटिंग इज हाइलाइटिंग सोर्स कोड का. कभी कोई बोल्ड इटैलिक में लिखते हैं, प्रॉपर दिखे इसके लिए लिखते हैं, वो सब. Next video will start with debuggers.
कि डिबगिंग क्या होता है, डिबगर्स की